Good morning, all, and welcome to our civil engineering classes. And this is Brainbox Smart Academy, which is representing agriculture and engineering aspects of life. Okay, and we are here to provide you the best things for GATE and ESE preparations. And you can see in the recording that for this, first of all, we have started with this subject, that is irrigation engineering. And this irrigation engineering actually comes under hydrology, but hydrology and irrigation can be separately done. Irrigation is a separate thing as you compare it with hydrology. So irrigation is a very small topic of hydrology, and it comprises of, I think so, 8 to 10 lectures where we will cover all of this which is being recorded. Okay, and the writing might seem horrific just now, but still you can face still you can record and write. Actually, you can write what I am speaking word by word, or I am explaining what I am explaining, whatever I am explaining, whatever you are understanding, you can write it in your own way. Okay, let's get started. Don't waste our time with these various topics, various talks. Okay, first of all, irrigation engineering. Let's start it. Chapter 1, irrigation techniques, introduction and techniques in irrigation. First is, what is irrigation engineering? Actually, what is irrigation engineering? And irrigation engineer, what is irrigation? Actually, what is irrigation? Not engineering. Engineering is a separate thing. But irrigation, what is irrigation? Actually, when nature or God gives us rain, and its intensity in whole the world is different. Wherever you go, you will have a different intensity of rainfall. Okay, so to fulfill and the crops which the need of the people living there, and the crops which are grown by them are totally different. Okay, so we need an artificial water supply is needed. Okay, which is called irrigation engineering. Nature and God gives us variety different intensity of rain according to different areas, and it might fulfill the need of the crop which is grown, or it might not. Therefore, we need artificial water supply, which is called irrigation engineering. Do India need irrigation engineering? First of all, we are Indians, so basically what will I discuss is basically about India. Okay, so India, yes, India is a tropical country, or some north portion of it is subtropical in nature. And subtropical nature, and this diagram which you can see here of India, it is not totally seeming to you, who might not totally be India, but still, uh, what you can say, a dummy of a India. See, there are different classifications of climatic classifications of the regions. Actually, there are arid regions, semi-arid regions, tropical regions, subtropical regions, humid subtropical regions. Okay, tropically wet and dry, tropically wet. There are different regions. Therefore, India is a tropical country, and here we need irrigation techniques for cultivating crops at different places, at different climatic conditions. Let's get started. What is arid region? See here, the Jammu and Kashmir region, this Sikkim and Arunachal region, these are all regions where this is cold arid region, or we can say mountain regions where snowfall is prominent. Okay, where snowfall is prominent, here water scarcity is more. The rivers might originate from here, but still there are crops which you cannot grow here. Okay, therefore it is cold arid region. And what do you mean by arid, semi arid? First of all, you need to clarify it. What is semi arid, what is arid, what is tropical, what is subtropical, and what are these wet and dry? This is being clarified here in these notes. What is arid? Where there is
scarcity of water, or you can say in the second thing that the lowest water table possible is this arid region. What is semi-arid region? A bit more cultivable than arid is semi-arid region. What is inferior crops? The crops which require lowest amount of water is inferior crops, and semi-arid region is the basic area where we can grow these crops. Okay. एंड मैं हमेशा इंग्लिश में ही नहीं बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि ये जो तैयारी हम कर रहे हैं वो गेट और ईएससी की कर रहे हैं और ये इंडिया के एग्जाम्स हैं. तो डोंट थिंक दैट आई विल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश. इट विल बी लाइक मोर इंटरैक्टिव, however whatever I feel so competent or not. Okay. तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ और इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, और हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बोलूँगा तो फिर ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ. एरिड रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है एंड वाटर टेबल उसका बहुत लो होता है. वाटर टेबल द ग्राउंड वाटर टेबल वेयर वी कैन, मतलब जहाँ पर हम हैंड पंप्स वगैरह लगाते हैं तो फिर वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हैंड पंप्स पानी, दैट इज़ द ग्राउंड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर से हम ऊपर को निकालते हैं उस पानी को जो वो पीने वाला होता है. आफ्टर प्योरिफिकेशन पानी कहाँ से जाता है, ऊपर से सारी लेयर्स को परमिएबिलिटी होती है जैसे, तो परमिएबिलिटी मीन्स दैट सीपेज, द सीपेज जब सीप करता है अंदर को पानी, जैसे कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, जैसे पानी ग्राउंड के अंदर जा रहा है तो वो जो सारी लेयर्स को पार करता हुआ जाता है तो वो लास्ट पे जहाँ पर वो लैंड करता है वो जगह उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं. लास्ट पॉइंट जहाँ पर इकट्ठा होता है वो उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड वाटर टेबल उसे कहते हैं जितना उसका लेवल होता है उन लेयर्स तक. ठीक है. बाकी ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते ही होंगे. मैं ये समझना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छे पेपर की तैयारी भी करनी है तो फिर ग्राउंड वाटर टेबल को आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से. सेमी एरिड रीजन क्या होता है? आफ्टर एरिड अ बिट मोर कल्टिवेबल इज सेमी एरिड रीजन एंड इन्फीरियर क्रॉप्स वेयर, वो क्रॉप्स जो सबसे कम अमाउंट ऑफ पानी से भी ग्रो हो सकती हैं उसे इन्फीरियर क्रॉप्स कहते हैं. ट्रॉपिकल कंट्रीज में, एक्चुअली इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट्स एवरेज टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस. ओके. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड एवरेज टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस. अब एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इंडिया को पूछेंगे कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इधर पानी भी होता है लेकिन और बारिश भी होती है हर जगह, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है वो हर जगह अलग अलग है. तो इसी कारण हमें इरिगेशन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है. दैट्स वाई वी नीड इरिगेशन हियर. एंड एक्चुअली द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328 मिलियन हेक्टर्स एंड 328 मिलियन हेक्टर्स in 328 million hectares 184 million hectare is cultivable. 184 million hectares is cultivable. एंड हेक्टर्स को अगर मीटर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करना, देन इट विल बी इन मीटर स्क्वायर. दैट विल गिव यू मीटर स्क्वायर एरिया. 184 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया. ओके. Although other areas of India which are not arid or semi-arid also need irrigation. Why? Due to rainfall unevenness. Okay. This is what I have explained you just now. This is one topic. Now second thing, what is advantages of irrigation? Advantages of irrigation. अब ये चीज़ बताने की तो है नहीं, वैसे फिर भी advantages of irrigation ये होते हैं. yield सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपके लिए होना चाहिए वो है यील्ड. यील्ड मीन्स द मैक्सिमम आउटपुट विच यू कैन गेट. ओके. सबसे ज़्यादा आउटपुट जो आपको मिलेगा जब आप अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे. ओके. द मैक्सिमम और ऑप्टिमम आउटपुट अंडर मोस्ट आइडल कंडीशंस. मोस्ट आइडल कंडीशंस इज नोन एज यील्ड. ओके. ऑप्टिमम इज least resources maximum result. Okay. Optimum means least resources and maximum result. And increase in food production
व्हाट आर द एडवांटेजेस? उसमें सबसे पहले यील्ड आता है, दैट इज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ओके, ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर, दैट इज लीस्ट यूज ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम रिजल्ट यू गेट। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब किसान अगर है तो किसान सोचता है कि एक ही जगह पर वो अगर दो क्रॉप्स साथ में लगाएगा तो फिर उसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, परंतु बट इसमें होता क्या है? इसमें ऐसा होता है कि दोनों क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, और अगर इन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है तो इस कारण से ना एक क्रॉप को ढंग से पानी मिल पाता है, ना दूसरी क्रॉप्स को ढंग से पानी मिल पाता है। इससे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ओके, दिस इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग कंसेप्ट विच आई वांटेड यू टू से। वाटर नॉट यूज प्रॉपरली एंड द वाटर इवेपोरेट्स, प्लांट्स नॉट गेटिंग वाटर। ये है अनइवननेस ऑफ फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के जो मैंने पौधे बनाए हैं और ब्लू कलर का जो पानी है, तो ये अनइवननेस ऑफ फील्ड है कि फील्ड में पौधे इस तरह से हैं और पानी हमने सरफेस, एक्चुअल में ये सरफेस इरिगेशन का एक एग्जाम्पल है। सरफेस इरिगेशन, अभी आगे हम इनकी डिवीजन पे आएंगे इरिगेशन की, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। तो उससे पहले ये देख लीजिए इसमें क्या हुआ है कि क्रॉप्स तो ग्रो की है, कईयों को पानी ज़्यादा मिल रहा है, कईयों को मिल ही नहीं रहा है, और कईयों को ऐसा है कि पानी वाटर लॉग हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा उसका यूज़ ही कुछ नहीं होगा, ना उनके रूट्स तक वो पहुंचेगा, वो सीधा इवेपोरेट कर जाएगा। इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर। तो ये वाली चीज़ भी हम इलिमिनेट कर देते हैं प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। ओके, फर्स्ट इज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, सेकंड इज ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज अचीव्ड, थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, अगर दो तीन क्रॉप्स हम एक ही फील्ड में डिवाइड करके कट करके अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसमें उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। इन अ सेम फील्ड डिफरेंट क्रॉप्स एंड वाटर यूजेज क्रॉप्स बोथ आर डिफरेंट। ओके, गुड रेवेन्यू रिटर्न्स, अगर आपकी इरिगेशन अच्छी होगी तो जनरल सी बात है किसान को अच्छा पैसा वापस मिलेगा, तो गुड रेवेन्यू रिटर्न्स भी हो गए। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और अगर कहीं कैनाल्स बने हैं जैसे गंगा कैनाल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गंगा कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस बट ऑल्सो जनरेट्स 80,000 किलोवाट पावर। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम डिटेल में, बट दिस इज वन सिंपल एडवांटेजेस कि इट कैन बी यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो। Domestic water requirement can be fulfilled generally, when we can divert the water from one point to our households, then domestic water is also fulfilled. Okay, और ये जो मेरी पहली वीडियो है बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा, थोड़ी सी इसमें कमी लगेगी आपको, चाहे बेशक लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वीडियो की क्वालिटीज़ भी अच्छी होती जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट्स, irrigation channels are provided with inspection roads and it can be used for walking. ठीक है, इरिगेशन चैनल्स हैं, जैसे अब मैंने एक कैनाल बना दिया तो अब वो कैनाल आ रहा है रिवर की साइड से वहाँ तक जहाँ तक हमें उस कैनाल को पहुँचाना है। ठीक है, तो उसके साइड में हम क्या करते हैं कि एक इंस्पेक्शन रोड भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं साथ साथ, ताकि वहाँ से लोग उसके ऊपर चल भी सकें और इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं उस पर। इंस्पेक्शन रोड्स कहा जाता है उन्हें। देयरफॉर एक ये भी है कि एक वॉकिंग ट्रैक भी बन सकता है उसके साइड बाय साइड। इनलैंड नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं पर भी अगर आप देखते होंगे तो नेशनल वाटरवेज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर कोई कैनाल बड़ा है, जैसा गंगा कैनाल है, गंगा भगीरथी हुगली रिवर, ये देखिए नीचे, ये NW है, नेशनल वाटरवेज। अब जैसे नेशनल हाईवेज हैं तो नेशनल वाटरवेज के तौर पे काम करते हैं। ये प्रयाग टू हल्दिया एक है NW1 हल्दिया, इट इज़ गंगा भगीरथी हुगली रिवर। ठीक है, दिस इज़ अ रिवर वाटरवे। सदिया टू डुबरी NW2 नेशनल वाटरवे 2, सदिया टू डुबरी, इट इज़ इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, इसमें क्या है कि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक बाय बोट ट्रैवल कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन का मीनिंग ये है,
traveling from one point to another by boats, etc. Okay. And third NW3 column to Kozhikode west coast canal है, चंपाकरा canal. This is a canal. Okay, column and NW3 जो column to Kozhikode है, that is a canal. Now come to afforestation. अब जनरल सी बात है, जहाँ पर पानी होगा और उसके साइड बाय साइड हम प्लांट्स भी उगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं. तो जनरली इट इज़ वेरी गुड थिंग दैट वी प्लांट ट्रीज, एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. ओके, दिस इज अ बेसिक थिंग विच यू कैन राइट इन द एडवांटेजेस. सेमेस्टर एग्जाम्स में 5 में से कुछ भी, अब 4, 5, 10 लिखने हो तो फिर आप 10 लिख सकते हो. आप बस अपना माइंड यूज़ करना है और उसमें से जो चीज़ें हो सकती हैं इसको अच्छे से समझ के वहाँ पर लिख सकते हो आप इजीली. अब देखते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन? प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. ओके, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यही है कि ये जो इरिगेशन में प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग है ये कॉम्प्लेक्स है एज वेल एज एक्सपेंसिव है. इसी वजह से जो फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. ओके, ओवर इरीगेशन. सेकेंड इज ओवर इरीगेशन. जब अगर हम एक्स्ट्रा इरीगेशन देने लग जाएं, पानी हम ज़्यादा चढ़ाने लग जाएं कि चल भाई और ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो और ज़्यादा क्रॉप होगी, तो इससे कुछ और ही हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है इसके कारण. और वाटर लॉगिंग होती क्या है, वाटर ज़्यादा हो जाता है, सेचुरेशन हो जाती है वाटर की सॉइल के साथ. इससे कारण क्या होता है, सीपेज ही नहीं होती है. जब सीपेज ही नहीं होगी, ग्राउंड वाटर लेवल आपका टॉप पे पहुंच चुका है, सीपेज ही नहीं हो रही है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा है, तो वाटर लॉगिंग हो रही है. तो वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप यील्ड है वो भी कम हो जाएगी और साथ में जो आपकी वाटर है वो भी हमारे को पंप आउट करना पड़ेगा. इसका एक ही सॉल्यूशन है, पंपिंग आउट ऑफ वाटर. Irrigation leads to seepage of nitrates. This is the third and most important disadvantages, that is nitrates. जो नाइट्रेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स ग्रोथ के लिए, और इनकी एक लिमिट होती है. दैट लिमिटिंग वैल्यू इज 45 mg पर लीटर. दिस इज द लेवल ऑफ नाइट्रेट्स विच शुड बी मेंटेन्ड. वो क्या होगा कि अगर हम इरीगेशन करेंगे, ज़्यादा इरीगेशन कर दिया तो फिर वो सीप करके अपने ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा नाइट्रेट. व्हेन दिस नाइट्रेट का जो एक ग्राउंड वाटर जो है, नाइट्रेट सब उसमें घुल चुका है, पानी में घुल चुका है नीचे, तो फिर इससे क्या होगा, जो वो नाइट्रेट्स हैं, अगर वो पानी नाइट्रेट्स वाला किसी ने पी लिया या पंप कर लिया, वेल में आ गया, वेल से पानी किसी ने निकाला और निकालने के बाद वो पिया, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है. और इसे हम कहते हैं मिथमोग्लोबिनीमिया. ग्लोबिनेमिया. एक्चुअल में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी ऐसे हो गया, मिथमोग्लोबिनेमिया. ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं एक्चुअली इसे, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है मिथमोग्लोबिनेमिया इज द प्रॉपर नेम. ओके, सेकेंड एंड 3 ये हो गए. और चौथा जो आपका डिसएडवांटेजेस वो जो आता है, दैट इज इरिगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट. यहाँ पर क्या होगा कि अब पानी ही पानी रहेंगे तो पानी से मतलब कोल्ड भी हो सकता है, कोल्डर और डैम्पर क्लाइमेट कंडीशंस हो सकती है, और जिसके कारण वो क्या, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे. वहाँ पर पानी होगा, पानी में क्या मॉस्किटोज होंगे, और मॉस्किटो क्या लेके आता है, मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू. इस तरह की बीमारियां आपके लिए ये गिफ्ट के तौर पे लेके आएगा अगर आप ओवर इरीगेशन करेंगे या फिर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे. तो इन चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना है, इसीलिए दिस इज़ नोन एज डिसएडवांटेजेस. वाटर लॉगिंग तो पता है सबको कि पंप के थ्रू ही बाहर निकाल सकते हैं. वाटर लॉगिंग जब एक्स्ट्रा पानी होगा तो फिर उसे क्या करेंगे, पंप आउट करना पड़ेगा. दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन. Types of irrigation. Now comes the important thing. We are beginning the chapter now. This is the chapter mainstream things. First of all, I have made you understand about why India need irrigation, why we need irrigation, and what are the advantages of irrigation and what are the disadvantages of irrigation. Now we come to types of irrigations.
There are two types of irrigation. First is subsurface irrigation, surface irrigation, and second is subsurface irrigation. कोई भी ले लीजिए आप. एंड सरफेस इरीगेशन दो तरह के होते हैं, फ्लो इरीगेशन एंड सेकंड इज लिफ्ट इरीगेशन. दोनों का नाम सजेस्ट कर रहा है. फ्लो इरीगेशन का मतलब ये है अंडर द ग्रेविटी. अंडर द ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी के अंडर से हम प्रोवाइड करवाते हैं पानी. ग्रेविटी फ्लो जो है वो किसको, क्या वो कौन गवर्न कर रहा है? ग्रेविटी गवर्न कर रही है उस फ्लो को. दैट इज flow irrigation. Application of water on the surface with the help of gravity. Lift irrigation. With help of pump, water is lifted up to the crop field. Okay. Lift irrigation का मतलब समझ ही रहे हो कि एक पंप लगाना पड़ेगा और पंप के थ्रू then it will go to the upper level where there are crops. Okay. This is pump irrigation. Lift irrigation. Lift irrigation. Now the flow irrigation is also of two types. Perennial irrigation. What is perennial is irrigation? Perennial is constant. Actually perennial is constant and continuous water supply for complete crop period. What is a crop period? Crop period ऐसा हो सकता है कि crop period total crop period है sowing till harvesting. When you sow a seed till you harvest that seed. This is the crop period. And flood irrigation क्या होता है? Applying water in one go. अब ये continuous irrigation ऐसा है कि रोज आपको सप्लाई करनी पड़ेगी पानी की, ठीक है. डेली यू हैव टू वाटर इट. नाउ फ्लड इरीगेशन कम्स. फ्लड इरीगेशन में क्या करना पड़ेगा? अप्लाइंग वाटर इन वन गो. अब एक बारी में आपने पानी डाल दिया, वो 1 से 5 दिन तक पानी चल सकता है या 6 दिन भी हो सकता है. 6 दिन तक का पानी आपने एक साथ दे दिया है, मतलब वो डेली आपको वो काम नहीं करना पड़ रहा है. दैट इज फ्लड इरीगेशन. नाउ कम्स टू सब सरफेस इरीगेशन. सब सरफेस इरीगेशन पे आते हैं. व्हाट इज सब सरफेस इरीगेशन? सब सरफेस इरीगेशन का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि सरफेस इरीगेशन मीनिंग जो पानी है दैट इज ऑल प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस, ओवर द सरफेस, नॉट बीनीथ द सरफेस. नाउ कम्स सब सरफेस इरीगेशन. इसमें सब सरफेस इरीगेशन का मतलब है कि जो टॉप सॉइल है, आपकी टॉप सरफेस ऑफ सॉइल है, इट डजंट गेट वेट, बट फ्रॉम बीनीथ, अंडरनीथ द सॉइल देयर इज अ लेयर फ्रॉम वेयर वी प्रोवाइड वाटर टू इट. वेदर नेचुरली ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है और इससे रूट्स को पानी मिल रहा है तो उसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल सब इरीगेशन. और अगर आर्टिफिशियली है, जैसे हमने पाइप्स प्रोवाइड किए नीचे वाले लेवल पे और उससे पानी उनको मिल रहा है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इरिगेशन बोलते हैं. इंटेंशनल लीकेज ऑफ कैनाल्स टू क्रॉप फील्ड. और अगर कैनाल्स जो है वो खुद ब खुद लीक कर रहे हैं और उससे पानी नीचे को आ रहा है तो उसे नेचुरल बोलेंगे. अगर आपने आर्टिफिशियली उसको इंटेंशनली लीक किया है कैनाल को, तो उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल सब इरिगेशन. नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स and it is very costly. याद रखना that it is very costly. That's why the poor farmers are very conservative for their needs for the crop to irrigate. Next चलते हैं हम. क्रॉप पीरियड क्या होता है अभी मैंने बताया, सो एंड जो निकालने वाली चीज है. कैपिलरी जोन क्या होता है? दिस इज व्हेन वाटर राइजेस अपवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन. कैपिलरी एक्शन हो जाता है, ठीक है. व्हेन वाटर राइजेस अपवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन. एंड जो जोन है जहां पर ये कैपिलरी एक्शन होता है दैट इज नोन एज कैपिलरी जोन्स. अब एक हमने क्रॉप फील्ड ली है, क्रॉप फील्ड के साथ एक डिच है एक साथ में. मैंने जहां पर एरो करके डिच दिखाया है, ब्रश यूज करके हम दिखाता हूं. दिस इज द डिच. ओके, दिस इज द डिच. यहाँ पर मैंने पानी फिल किया और यह पानी क्या कर रहा है, यहाँ पर ये नीचे नीचे को सीप करेगा. और दिस इज अ क्रॉप फील्ड. ये हर जगह सप्लाई होती जाएगी. लेकिन जो ये सबसे ज़्यादा परकोलेट करेगा वो यहाँ पर करेगा, इस पोर्शन में करेगा. ओके, यहाँ पर थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और यहाँ तक ये इस एंड तक पहुंचाना है हमने किसी तरह से. इस तरह से ये परकोलेशन चलती है. सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर
और ये डिस्चार्ज रेट पे भी आपका डिपेंड करता है कि आपका डिस्चार्ज रेट इस पॉइंट पे कैसे है। चलो लेट्स गो एंड अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये वाली चीज़।